Today we have given you on the topic of this woman caught in adultery. और आज हम बहनों उस स्त्री के बारे में बातचीत करेंगे, सीखेंगे जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी. We have read this story many times. और ये जो कहानी है हमने बहुत बार पढ़ी है. It is only written in the book of John, Gospel of John. और ये सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में लिखी गई है. And for that we all have to learn some very good lessons. और इसलिए हम यहाँ से बहुत अच्छा एक सबक या सीख हम ले सकते हैं. And all of you all have also read it. I'm sure you also have something to share about it. और इसके बारे में मैं यकीन रखता हूँ कि आपके पास भी कुछ बांटने के लिए होगा. I will start the sharing and then you all can also share. और मैं अपना वचन सुनाना शुरू करूंगा, उसके बाद आप भी अपनी बातों से बांट सकते हैं. So in chapter 8 verse 1 it says, and Jesus went to the Mount of Olives, and verse 2, and early in the morning he came again into the temple, and all the people were coming to him, and he sat down and began to teach them. और यूहन्ना 8 उसका 1 और 2 वचन, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा. So we know this Mount of Olives is very close to the Jerusalem temple and in Jerusalem, and that's where Jesus many times he went to pray and spend the night over there. और हम जानते हैं कि ये जो मंदिर था वो यरूशलेम के बहुत ही नजदीक था. वो अक्सर वहां जाया करता था और बैठकर वहां उपदेश दिया करता था. And he used to always go there with his disciples and pray. और वहां अपने चेलों के साथ जाया करता था और प्रार्थना करता था. We know that before he was crucified also he went to the Mount of Olives and prayed. और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था तब भी वो जैतून के पहाड़ पर जाकर उसने प्रार्थना की. And when he came up in the morning, he became fresh and then came straight to the temple. He didn't go here and there. The Heavenly Father told him, go to the temple and teach the people the word of God. और जैसे ही प्रार्थना करी ठीक वो मंदिर में चले गए यीशु मसीह, और पिता ने उनको कहा था कि इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक मंदिर में जाकर उपदेश देना. And verse 3 says, at that time when he was doing all this teaching, the meeting was going on. The Pharisees and the scribes brought a woman who was caught in adultery and brought him in front of the meeting. और तीसरे वचन में लिखा है कि तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कुछ कहा. And the scribes and Pharisees were the people who had the Bible with them, and they were the leaders of the temple. और ये शास्त्री फरीसी जो लोग थे वो अपने हाथों में बाइबल को रखते थे और उससे कुछ कहते थे. I don't know why they came to Jesus, because Jesus was he was a teacher, but he was not the leader. But he was so young, he was only about 32 years old, and these people are almost 60 years old. और मैं नहीं जानता कि ये यीशु मसीह के पास क्यों आए थे, क्योंकि वहाँ जब यीशु मसीह की जो उम्र थी या 30 या 32 साल रही होगी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा उम्र के थे, कम से कम 60 वर्ष के होंगे. But the only thing which I can say is that they just wanted to test him and check him up to see what was his opinion. और वो उसकी परीक्षा के लेने के लिए आए थे, उसको जांचने के लिए आए थे कि वो क्या कहता है इसके बारे में. So they said to Jesus in verse 4 that, teacher, this woman has been caught in adultery, the very act. और चौथा वचन कहता है, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है. And verse 5 says, now in the law of Moses commanded us to stone such a woman, and what then do you say? और 5वां वचन कहता है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? So they said, see, we found this lady, she was doing an immoral act and she was caught, and Moses' law, the Bible says that such people should be put to death by throwing stones at her. और वो कहते हैं कि इसको हमने व्यभिचार करते हुए इस लड़की को पकड़ा है और मूसा व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थर मारकर उसे मार दिया जाए. Now why they only should have decided the whole thing, but why did they come to Jesus? और वो सब निर्णय ले चुके थे, पर वो यीशु मसीह के पास क्यों आए? And verse 5 says, now in verse 6 says, and they were saying this to test him in order that they might have grounds for accusing him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground. और छठा वचन,
उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। So they were very cunning and very shrewd type of people, these priests. और वो बहुत ही चालाक लोग थे। ये जो शास्त्री और फरीसी थे वो बहुत ही चालाक किस्म के लोग थे। They knew that Jesus did a lot of miracles and lot of good things and taught a lot of good things from the Bible. और उन्हें ये वो जानते थे कि यीशु मसीह ने बड़े-बड़े कार्य किए हैं, बड़े-बड़े चमत्कारों को उसने किया है और बहुत सारी बातें जो हैं बाइबल से उसने सिखाई है। Now, and he was so kind to everybody, he never condemned anybody. और वो बहुत सभी लोगों के लिए बहुत दयालु है, किसी को भी दोष नहीं लगाता है। He only came to do good. वो सिर्फ अच्छा भलाई करने के लिए आया है। So they wanted to see whether what he will say, just to let her go or to punish her, because the law of Moses said to punish her because she had sinned. और वो यही बात को देखने के लिए आए थे कि ये यीशु मसीह जो है वो क्या कहते हैं इस विषय में, उसको जाने देते हैं या मूसा की व्यवस्था में तो ये लिखा है कि उसको मार डाला जाए। Now the question is, why only they brought the lady? They didn't bring the man also. The man also should have been put stoned to death. और प्रश्न ये उठता है कि वो सिर्फ स्त्री को ही क्यों लाए, पुरुष को क्यों नहीं लाए? वो भी तो पथराव के पाप के समान था। He also had done sin. उसने भी पाप किया था। So they only brought the lady because the lady they could catch her. Maybe she was very poor and helpless. और वो सिर्फ स्त्री को उठाकर लाए क्योंकि वो जो स्त्री थी बहुत ही गरीब थी और असहाय थी। So when they told Jesus this, Jesus just bent down and sat down on the ground and began to write something on the ground. और यीशु मसीह को जैसे ही शास्त्रियों फरीसियों ने कहा तो वैसे ही वो नीचे झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लग गए। What he wrote we don't know. और वो क्या लिख रहे हैं ये हमें नहीं पता है। But as he was writing, they began to ask him again and again. They persisted in asking him, "What should we do? What should we do? What do you think we should do?" और जब यीशु मसीह भूमि पर लिख रहे थे तो वो बार बार पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम क्या कहते हो इसके विषय में, क्या करना चाहिए। Then he put his head up and then he said these words, "He who is without sin should be the first to throw a stone at her." और फिर उसने ऊपर की ओर देखा और कहा कि जो तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो इस पर पहले पथराव करे। Then again he bent down and began to write in the ground. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा। And verse 9 says, and when they heard it, they began to go out one by one, beginning from the older one, and he was left alone, and the woman where she had been in their midst. और 9वां वचन, परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। So all these priests and these scribes who came, Jesus told them, now anybody who has not done the sin, you should be the first one to take a stone and throw it to her. और वहां पर सब शास्त्री और फरीसी खड़े हुए थे। उनको यीशु मसीह ने कहा तुम में जो कोई निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। And then they all got convicted in their heart because they also are such great sinners in their private life. और उनके हृदय ने उन सभी को अपने आप में दोषी ठहराया क्योंकि कुछ न कुछ पाप जो है गुप्त जीवन में उनके जीवन में थे। From the senior most to the junior most. बड़े से लेकर छोटे तक सभी के अंदर। The first person to go out was the senior most priest. Sorry brother. The first one to leave the place was the senior most priest. और जो सबसे पहले उस जगह को जिसने छोड़ा था वो सबसे छोटा व्यक्ति था। See, when Jesus speaks, he speaks to people's heart and their conscience. और जब यीशु मसीह बात करते हैं तो वो उसके विवेक से उसके हृदय से बात करते हैं। He is more interested in the sin that is inside their heart rather than the outside. और यीशु मसीह दिलचस्पी रखते हैं उन पापों में जो हमारे अंदर हैं बजाय उसके कि जो बाहर। Because Jesus told the Pharisees, outside you are looking very nice, you wear nice clothes, you wear all sorts of Bible verses on your body, and you do a lot of prayers, and you fast and do things, but inside your heart is full of evil, there is a lot of immorality and lot of pride. हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि जो फरीसी और शास्त्री लोग हैं वो बाहर से तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाइबल उनके हाथ में रहती है, अच्छी बातें करते हैं, पर अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरे कामों से और बुरे पाप से वो भरे हुए हैं। We see that verse in Matthew chapter 23.
और हम ये वचन मत्ती 23 में देखेंगे। Verse 27. 27वां वचन। Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed walls, tombs on which outside you appear beautiful, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। So that means there are all sorts of evil anger and hatred and murderous thoughts and all sorts of immorality in their hearts. और मन में बहुत बुराई, गंदगी और पाप के विचार और खून करने के विचार मन में रहते हैं। Then he said, verse 28 also, even so you too outwardly appear righteous to men, but inwardly you too are full of hypocrisy and lawlessness. और 28 वचन कहता है कि इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। Yes, all the wrong things they were doing, and then they were accusing the other people who are also doing wrong. और बहुत सारे बुराइयों से भरे रहते हैं और उन पर भी दोष लगाते हैं जो उन्हीं के समान बुरे काम कर रहे हैं। That is why Jesus said, if you are living in sin, how can you accuse people who are also living in sin? इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम ही पाप में रह रहे हो, तो तुम जो पाप में रह रहे हो उनको दोषी कैसे ठहरा सकते हो? So one by one they all went away and left the woman alone, along with Jesus. और एक एक करके जो शास्त्री होते हैं, फरीसी जो लोग वहां पर खड़े होते हैं, एक एक करके पीछे हो जाते हैं और यीशु और वो स्त्री ही बीच में खड़े रह जाते हैं। Then I think the disciples also are all there watching everything. और मुझे लगता है कि वहां पर चेले भी वहां खड़े होंगे और ये सब चीजों को देख रहे होंगे। And then Jesus in verse 10 asked, women, where are they? Did no one condemn you? और फिर यीशु मसीह पूछते हैं कि कहाँ गए वो लोग, क्या किसी ने तुम पर दोषी नहीं ठहराया? There was nobody to accuse her. Everybody went away. और तो उसने ऐसा कहा कि कोई भी नहीं रहा, सब लोग चले गए। And then Jesus said, no one, she said, nobody is Lord there. Jesus said, neither do I condemn you, verse 11. Go your way, from now on, sin no more. 11वां वचन, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। So what do we learn from this story? तो हम क्या सीखते हैं इस कहानी से? Jesus, we sang the song, he did not come to blame the world, he did not come to, he only came to save us. और हमने इस गीत को गाया कि पर वो यीशु मसीह जो है वो जगत को दोषी ठहराने नहीं, बचाने के लिए आया है। So Jesus came to save all sinners. परमेश्वर सारे पापियों को बचाने के लिए आया है। And this lady was a sinner, but she was poor, and why she was committing adultery? Maybe because she was poor and she wanted some money. और वो जो स्त्री थी वो बहुत ही असहाय थी, गरीब थी, और वो व्यभिचार इसलिए शायद कर रही होगी क्योंकि उसको पैसों की आवश्यकता होगी। And Jesus knew and understood the condition of all women who are oppressed. और यीशु मसीह जो है सारी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं कि क्या दुख रहा होगा इसके जीवन में। The law of Moses, they did not show any mercy to these people. और जो मूसा के जो विचार है वो उसमें जो है, उसमें ऐसी स्त्रियों के लिए कोई भी दया नहीं है। Jesus knew that they had a flesh where there was a lot of temptations and they were likely to sin, and he came to die for them. और यीशु मसीह जानते थे कि ये जो है वो शरीर ही है, बहुत सारे जो गंदे विचार या बहुत सारे प्रलोभन इनके जीवन में आते हैं, इसलिए वो हमें बचाने के लिए इस जगत में आया। So Jesus came to help the weak and the people who are poor. और यीशु मसीह जो कमजोर है उनको और जो गरीब है उनको बचाने के लिए आए। So wherever Jesus went, we found all the poor people, all the adulteresses who are past, they all followed him because Jesus loved them and gave hope for them. और सभी के लिए जो व्यभिचार में गिरे हुए हैं या जिसने बुरे काम किए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह उनके लिए आशा है। So when all of us have committed sin and if we are humble about it, God has
hope for us and God will save us. और हम सभी ने पाप किया है, इसलिए यदि हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह में हमारे पास एक आशा है। And we learn that we must not keep on blaming your husband or your children or anybody, your mother-in-law, for all their problems. Jesus Christ has come to save everybody. और हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना है, ना पति पर, ना पत्नियों पर, और ना ही अपने सास या ससुर पर। परमेश्वर हम सभी को बचाने के लिए आए हैं। However bad they behave towards us, we should never wish and condemn anybody. चाहे कितना भी बुरा कर दें वो लोग आपके लिए, तो कभी भी उनको दोष नहीं लगाना है और कभी भी उनके लिए बुरा नहीं सोचना। We must always say, one day this person should change. और हमें यही सोचना है कि एक दिन ये व्यक्ति जरूर बदल जाएगा। In the Old Testament also, the prophets always told the people to change. God doesn't want you to die and go to hell. He wants you to change, repent and change. और जो नबी हैं वो भी हमेशा ऐसे ही कहते थे कि मन फिराओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम नरक में जाओ, इसलिए अपना मन फिराओ। We see in the book of Ezekiel, chapter 18. एजेकिएल की पुस्तक में हम 18 अध्याय को देखेंगे। Verse 23. 23 वचन। It says, "Do I have pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, rather than that he should turn away from his sins and from his ways and live." प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? Again, verse 32, God says, "For I have no pleasure in the death of anyone who dies, declares the Lord. Therefore repent and live." और 32 वचन में, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मेरे उसके मरने में से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो और तुम भी जीवित रहोगे। We must not, God doesn't want any evil sinner to die and go to hell. ये परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे बुरा भी काम करता हो वो मरे और नरक में जाए। So that's why that should be also in our heart, that we want everybody to be saved, even till the last moment they should be saved. और यही हमारे हृदय में भी होना चाहिए। हर कोई बदल सकता है, आखिरी क्षण तक भी कोई भी बदल सकता है। But the Pharisees are very hard-hearted people. They wanted to accuse people of the same sin that they were doing also. और पर जो शास्त्री और फरीसी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा कठोर लोग थे, वो दोष लगाने वाले लोग थे। So people who condemn others and blame others are the people who do the same sin. जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वो वही पाप खुद ही करते हैं। Even if we have overcome that sin, maybe gossiping or backbiting or any anger or any such thing, people say, "Lord, you only have saved me from sin. If you can save me from sin, you can save the other person also from sin. I am also a sinner from the same gutter. You also can help them." और ये हो सकता है कि आपने किसी पाप पर जय पा ली हो, पीठ पीछे बातें करना, चुगली करना, तो आप दूसरे को भी ऐसा बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपको इस पाप से छुड़ाया है, क्योंकि आप भी इसी नाली में पहले थे जहाँ पर वो लोग हैं। So Jesus, even though he didn't commit a single sin, he was so perfect. He still had hope, and he said, "Don't sin anymore. I do not condemn you." और यीशु मसीह जिसने एक भी पाप नहीं किया था, वो एकदम परिपक्व थे, एकदम शुद्ध थे, और उन्होंने कहा कि मैं तुम पर दोष की आज्ञा नहीं देता, उस पर जाओ और फिर से पाप मत करना। The more we become like Jesus Christ, the more we grow in the Lord. We will not condemn anybody. We will not judge other people. We only wish the best for them. और जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, प्रभु की समानता में होते जाते हैं, हम दूसरों पर दोष नहीं लगाते, दूसरों को ऐसे दोषी नहीं ठहराते और कहते हैं कि हाँ प्रभु तुम्हारे साथ है। We will start praying for them. और हम उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। From our heart we say, "Lord, this person, you have saved me, Lord. I was worse than this person. You can save this person also. I don't want any bad to come to anybody. I want to see them in heaven." और हम ऐसा कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, ये जो इसको है तो तू बचा ले परमेश्वर, आपने मेरे जैसे बड़े पापी को बचाया है, तो आप इसको भी बचा सकते हैं, ये नरक में ना जाए प्रभु, ये बचा लिया जाए। And he told this woman,
go and do not sin anymore. Don't go to these bad places again and don't do that same sin. और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि ये पाप फिर से मत करना, फिर से वो गंदी जगह पे मत जाना और ये पाप में मत गिरना। See, all sin will separate us from God. और सारे जो पाप है वो परमेश्वर से हमें अलग करते हैं। The Lord Jesus is willing to forgive every sin if we come humbly and ask forgiveness and have a desire to turn away. और हमें परमेश्वर जो है सारे पापों से शुद्ध करते हैं यदि हम अपने आप को नम्र करें और अपने पापों को मान लें। So we say, Lord, I don't want to gossip anymore. I don't want to do all these, keep anger and bitterness in my heart. I don't want to cheat anybody. और यदि हम कहें परमेश्वर से कि प्रभु अब मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, कोई गंदे विचार अपने मन में नहीं रखना चाहता। So God, the Lord Jesus doesn't want us to sin. He wants to save us from our sin. और यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम पाप करें और इसलिए परमेश्वर जो है हमें सारे पापों से छुड़ाते हैं। No lies at all. We should never tell lies. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। Because the devil is the father of all lies. और क्योंकि जो शैतान है वो झूठ का पिता है। And we should not keep any hatred in our heart. Forgive, because the devil is a murderer. We will follow him. और जो हमें कभी भी कठोर जो गलत विचार है अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो शैतान है वो जो है गलत विचारों को अपने मन में रखाता है। If it comes to our life, immediately confess it, forsake it, ask forgiveness from God and ask forgiveness from people. और यदि कोई गलत विचार या कठोर गंदे विचार आपके जीवन में आते भी हैं तो तुरंत आपको परमेश्वर के पास जाना है और उसको मानकर उसको पश्चाताप करना है। And what do you think the woman must have done? और यही जो चीज थी वो स्त्री ने कही थी। No, what do you think she would have done after Jesus told this? सॉरी, आपको क्या लगता है कि इस स्त्री ने दोबारा फिर जाकर क्या किया होगा? See, her whole life was changed. Jesus only saved her life. उसके पूरा जीवन बदल गया, यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया। If only the Pharisees, Jesus was not there, the Pharisees would have killed her. और यदि यीशु मसीह वहां नहीं होते तो जो फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, उसको मार डालते। She must have said, "Thank you, Lord, for forgiving my sin. I will not go back anymore. Doesn't matter how much I have to suffer. I will live and follow you." और उसने यीशु मसीह से कहा कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को बचा लिया। मैं उस पाप में नहीं गिरूंगी, चाहे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़े, पर फिर भी मैं आप ही से प्रेम रखूंगी। And I'm sure that she would have become a disciple of Jesus Christ and been there in the early church. और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि वो जो महिला स्त्री है वो परमेश्वर की जो है चेलों में से एक होगी और वो बिल्कुल उस कलीसिया में जाती होगी। She followed Jesus and God must have given her a means of occupation. She must have got some job, some work to do, and she could support herself. और उसको कोई जरूर हो सकता है कि उसको कोई एक काम मिल गया हो जो अपने आप को वो पालन पोषण कर सके खुद का, और परमेश्वर की महिमा करती होगी। So whenever we follow the Lord and seek after the Lord, then the Lord will take care of all our earthly needs. और यदि हम परमेश्वर का पीछा करते हैं, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमें सारी जो हमें जरूरतें हैं इस पृथ्वी पर वो हमें देता है। It is His duty it comes God's duty to take care of each one of us. और ये परमेश्वर का काम है कि हमें से हर एक की जो है सहायता वो करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। We belong to Him, therefore everything He will do well for ourselves and for our family members. और क्योंकि हम उससे ही एक ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सभी जरूरतें को पूरी करता है। We become His children, and He takes, as a father takes care of the children of His own children, God will take care of us. और हम परमेश्वर की संतान हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे ही यीशु मसीह जो परमेश्वर है जो हमारा ख्याल रखते हैं। We don't have to do the wrong things to earn our living. Sorry, brother. We don't have to do the wrong things or go into sin to get some money or live this life. हमें वो पुराने पापों में फिर से नहीं जाना है, जो गलत काम हम करते थे कि पैसे कमाने के लिए जो कुछ भी हम करते थे उसमें दोबारा लौट कर नहीं जाना है।
Because Jesus is the light of the world. He said in verse 12 in Matthew chapter, in John chapter 8, verse और 12. यूना यूना के 8 और 12वां वचन में वचन कहता है कि यीशु जगत की ज्योति है। So he said again, Jesus spoke to them and said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. ब्रदर वर्स Verse 12, 12 8:12. जी John chapter 8, verse 12. यस। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। So this lady, this woman who was caught in adultery, got the life and the light, and she got the life of Jesus in her own life. और जो स्त्री है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसने ज्योति पाई और यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया। She became born again and began to follow him. उसने नया जन्म पाया और उसको वो यीशु मसीह का पीछा करने लगी। From this incident, the Lord Jesus began to teach the people around him, his disciples and all those who are gathered in the temple, that Jesus is the light of life. और इस घटना के बाद यीशु मसीह ने कहा, और जो वहां पर जो अपने चेले हैं वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको सबको कहा कि यीशु मैं जो हूँ वो जगत की ज्योति हूँ। And you and I also should be the light of life in this world. और हमें और आपको भी इस जगत की ज्योति के समान जीना है। Jesus said, you are the light of this world. यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। We should show the goodness of God, that God is love to all the people around us, in our neighbors, in our friends, among our relatives. और हमें यीशु के समान अपनी ज्योति को फैलाना है, भलाइयों को दिखाना है। परमेश्वर जैसे प्यार करते थे सभी से, वैसे ही हमें अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार में सभी से प्रेम रखना है। He said, no need to live in sin, no need to live in depression and gloom, but you can be joyful and happy because God can forgive your sins and you can have eternal life. और कोई भी दुख तकलीफ परेशानियों में दुखी होने से मतलब नहीं है, मत होइए दुखी, और परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है, आपको शांति और आनंद वाला जीवन दिया है। Most people think that having a lot of good food, lot of money, a good house, lot of clothes, traveling here and there, then they will be very happy. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास अच्छा खाना है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं और पैसा है खूब सारा, तो वो बहुत खुश है। But Jesus came and lived a poor life among all poor people and showed them that when we repent from sin, then we will get a very happy life, the life of God, a life of peace, joy and love. और यीशु मसीह ने यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहकर दिखाया है, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, पर उन्होंने ये बताया कि यदि हम अपने पापों से मन फिरा ले तो हमारा जीवन जो है असली आनंद और असली शांति से बढ़ जाएगा। And this is the life which all the rich people and the famous people do not have. और ये वो जीवन है जो बहुत सारे अमीर लोगों के पास या फिर बहुत सारे जो टीवी पर काम करते हैं उन लोगों के पास नहीं है। The happiest people are those who live in fellowship with the Lord and turn away from sin. सबसे खुश लोग वही हैं जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, जिसने अपने पापों से मन फिरा लिया। The Lord also tells us, go and sin no more. Don't go back into your own sins. और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और फिर से पाप मत करना, कभी भी अपने पुराने पापों में ना लौटें। Throw away all your bad habits. और सारी गंदी आदतों से अपने मुंह फेर ले अपना। Don't keep grudges in your heart and unforgiving spirit. कभी भी अपने मन को कठोर करके किसी को ना माफ करने वाला हृदय ना रखें। Avoid telling lies completely. पूरी तरीके से झूठ बोलना छोड़ दें। So we can be only in the truth. The life, Jesus is always truth. पर हमेशा हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। And instead of having darkness and hatred in our heart, now we can show love to all the people around us. पहले हमारे जीवन में बहुत ही अंधेरा और बहुत ही कड़वाहट थी, पर अब हमारे हृदय में प्रेम रखना चाहिए जो हमें दूसरों को बांटना भी चाहिए। The Lord Jesus come to save you and me, brothers and sisters. यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए आए हैं बहनों। And the Lord, your neighbors and friends also will see the love of God and the light of God in your own life. और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी दिखना चाहिए परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का जो जीवन है आप में से दिखना चाहिए। And people at home also will see that you are changed. और जो घर के जो लोग हैं वो भी उनको भी देखकर लगना चाहिए कि आप बदल गए। Because
when we change, it will change slowly, year by day, month by month, it will change, and we will be more living like Jesus lived. और जैसे जैसे हम दिन पर दिन साल दर साल बदलते जाते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। So just as Jesus came to save others, the Lord wants us also to be saving others from sin and showing us them the path to God. और जैसे यीशु मसीह संसार में दूसरे लोगों को बचाने के लिए आए, वैसे वो हमसे चाहते हैं कि हम वैसा जीवन जीकर दूसरे लोगों को यीशु मसीह के करीब लाएं। So the way we live is very, very important, brothers and sisters, in your homes. Other people also watching how you are living. और जैसे हम जी रहे हैं, वैसा वो जो जीवन है हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग वही देख रहे हैं कि आप किस तरीके से जी रहे हैं। And God is giving each one of us a lot of hope, and we also give other people a lot of hope that things can go better with them. और यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी आशा दी है, और हम भी दूसरों को आशा दे सकते हैं ताकि वो अपना जीवन और बेहतर तरीके से जी सके। There's no need to be discouraged at all. कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। When we are encouraged, we can encourage other people. यदि हम प्रोत्साहित होते हैं तो हमें दूसरों को भी प्रोत्साहन देना है। You can say, yes, God saved me from this sin of anxiety, sin of blaming others, judging others. I was full of that, but now God has put kindness and goodness in my heart. हमें कहना है कि हाँ, हम भी पहले ऐसी पापों में थे, बहुत सारा चिंता करते थे, हमारे जीवन में शांति नहीं थी, पर अब परमेश्वर ने हमें शांति से भर दिया है, हमारे जीवन में अब कोई चिंताएं नहीं है। He has set me free from all the bad habits of sin, set me free from the power of the devil. परमेश्वर ने हमें सारे गंदे पापों से छुड़ाया है, शैतान के जो बंधन है उससे छुड़ाया है। So let us come to Jesus at all times. He is not willing. He will never push anybody away. He came to save us. हमें परमेश्वर के करीब आना है। परमेश्वर किसी को भी त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। परमेश्वर अपने करीब बुला लेते हैं। When you're alone, all alone in the house in the night, just talk to the Lord and ask Him to help you. जब भी आप घर पे अकेले हो तो परमेश्वर से बातचीत कीजिए, उसको पुकारिए, परमेश्वर आपको सहायता देंगे। It says in Romans chapter 10. रोमियो के 10वें अध्याय में, I'll end with this last verse. ये आखिरी वचन से समाप्त करूंगा। It says in verse 13. 13 वचन, Whoever will call upon the name of the Lord will be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Now you call on the name of the Lord today, you will be saved. यदि आप अभी आज ही यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो आप बचा लिए जाएंगे। He said, save me from my anxiety, save me from my fear, save me from my anger. God will save you. परमेश्वर आपको अपनी चिंता से, डर से और हर एक प्रकार की गलत चीजों से छुड़ा लेंगे। And you will tell others also, call upon the name of Jesus of God, and then you will be saved from all your sin. और ऐसा ही दूसरों को भी कहना है, परमेश्वर को पुकारिए और आप सब प्रकार के जो आपके पाप है, गुस्सा है, उससे छुड़ा लिए जाएंगे। What a loving, compassionate Lord Jesus we have. कितना प्रेमी और दयालु परमेश्वर है हमारे पास। That's why He lives among us, but one day He'll become our judge after we die. और हमारे मर जाने के बाद परमेश्वर जो है एक न्यायी के समान हमारे सामने होगा। The same Jesus who is so loving and kind will keep on judging there, then nothing can be done. और जो अभी जो परमेश्वर है हमारे साथ, जो दयालु है, हमारे सारे पापों को क्षमा करने वाला है, उस वक्त ऐसा नहीं होगा, वो न्यायाधीश के समान होगा। Before the final exam, we can always take help from the Lord. He will guide us and strengthen us. और जब भी हमारा जो आखिरी जो परीक्षा होती है, उसमें हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। After the final, when the final exam comes, we cannot do. Only we have to give. God will check us whether we have been calling on Him or be saved from sin. Sorry, brother. And during the exam, when after we die, then there is no other hope for us. और जब हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारे पास कोई आशा नहीं बचेगी। So, dear sisters, let us take every day very precious in the eyes of God. Let us live for the Lord and call upon the name of the Lord. और हर एक दिन बहनों हमारे जीवन जो है परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, परमेश्वर के लिए हमें जीना है। Amen. So, dear sisters, now is the time for you all also to share some thoughts, what you have learned from this incident, from the life of this lady, and how Jesus dealt with her and how He helped her.
प्रभु ने इसको कैसा सुझाव दिया, प्रभु कैसे बचाया, आपको भी थोड़ा शेयरिंग कर सकता है। थोड़ा 10-12-15 मिनट है, तो कोई भी शेयर कर सकता है। तो यू कैन शेयर एंड एनकरेज वन अनदर। ये आपका सिस्टर्स का मीटिंग है, एनीबडी कैन शेयर, प्लीज शेयर फॉर फ्यू मिनट्स ईच। कोई भी शुरू कर सकते हैं। क्या सीखा आपने इस इंसिडेंट से? तो दीपिका शुरू कर सकते हैं, जैसे विजया, आप लोग ज्यादा बोला नहीं है बहुत टाइम से, शेयर कर दीजिए, कोई भी शेयर कर सकता है। कोई भी, जूही, सोनाली। हाँ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक मैंने भी यहाँ जो ब्रदर ने हमें बताया है इस स्त्री के बारे में, उससे मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और भी मैं इसको जब आगे पढ़ूंगी तो मैं और भी इस बातों में से मैं एक बार फिर से जब पढ़ूंगी और इस बातों को सुनूंगी तो मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर मुझसे बातचीत करेंगे। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी, जैसे जब भी हम कोई पाप करते हैं तो शैतान हमें ऐसा बार बार हमें हम परमेश्वर से यदि माफी मांग लेते हैं तो भी शैतान जो है हमें बार बार वो करता है कि ये पाप तुमने किया है, ये पाप तुमने किया है। तो आज ही मैं पढ़ रही थी इस चीज को, ब्रदर जैक का लिखा हुआ है ये। मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया है, वो जो है जैसे प्रभु यीशु मैंने पश्चाताप किया और अपने पापों को स्वीकार किया और उस लहू से पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और आपने मेरे लिए लहू बहाया है, ऐसा करके हमें शैतान को बोलना चाहिए। ब्रदर जैक यहाँ पर बोल रहे हैं कि शैतान को बोलना चाहिए, उसी वक्त हमें बोलने देना चाहिए कि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया गया है। जब हमें पूरा तरीके से शैतान का ऐसा सामना करना चाहिए कि हमें दोष लगाता है, वो दोष लगाने के लिए आता है, तो हमें शैतान का सामना करना चाहिए कि यीशु मसीह जो है हम पे दंड की आज्ञा नहीं देता है, हमें दोषी नहीं ठहराता है। जैसे इस स्त्री को उसने दोषी नहीं ठहराया है। परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। और मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आज सुबह ही मैंने इसको पढ़ा तो मुझे और इससे इससे जुड़ के ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि परमेश्वर कितना भला है कि मतलब हमें हमारी सारी जरूरतों को, जो आत्मिक जरूरतें हैं और सारे शारीरिक जरूरतें, वो दोनों ही आवश्यकताओं को पूरी करता है। और एक बात मेरे को बहुत कब से मेरी चल रही थी कि जैसे ब्रदर ने कहा था अभी, ब्रदर जॉर्ज ने कि कल कहा था, ट्यूसडे को कहा था कि ये जो बातें हैं ना, ये जो है हमारे पास अच्छा खाना है, अच्छा कपड़े हैं या अच्छा स्वास्थ्य भी हो हमारे पास, ये तो सब छोटी आशीषें हैं। तो जो असली आशीष है वो हमारे पास है परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का प्रेम। तो मैंने भी इस बात पर मैं बहुत सोची थी कि हाँ परमेश्वर, ये तो बात एकदम सही है कि हमारे जीवन में भले ही कुछ बीमारी यहाँ आ जाती है या फिर हमारे पास हमारी जरूरतें नहीं होती पूरी करने के लिए, या तो हमारे पास पैसा नहीं होता, पर परमेश्वर आपकी शांति, आपका आनंद और आपका प्रेम इस सारी चीजों के परे है। हमें कुछ ना भी मिले तो हमें चलेगा प्रभु, पर आपका शांति, आनंद, प्रेम हमारे लिए बढ़कर है। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज जो कहानी हमने सीखी उसमें मैंने यीशु मसीह से सीखा उनका कंपैशन। और यीशु मसीह ने उस स्त्री के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं लगाई, वो बहुत पाप में पकड़ी गई थी, पर यीशु मसीह ने उससे घृणा नहीं करी। यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने उस पर दोष की आज्ञा नहीं लगाई, क्योंकि यीशु मसीह जो है हम पे दोष की आज्ञा लगाने के लिए नहीं आए हैं, वो हमें बचाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर फिर यीशु मसीह ने 12वें वचन में कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तो ये चीज मैंने सीखी कि यीशु मसीह बहुत दयालु हैं और बहुत ज्यादा हमसे प्रेम रखते हैं। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम कभी अंधकार में नहीं होंगे, हमेशा जीवन की ज्योति को पाएंगे। आमीन।
I thank and praise God for today's message. I would like to share is that what I learned from this passage, and as brother was sharing, that Jesus was full of compassion and full of mercy. And he could see that even though she had committed adultery and everybody was ready to punish her and accuse her of the sin she had committed, but Jesus was just like our Heavenly Father. He was full of love and he saw that she needed mercy and compassion. And that is what Jesus shows us, that through this passage, that we too have to be the same, that whenever we see any sin in others, and when there is some sin in our life, we too have to be compassionate to others. And when we see, like Brother George was saying, there is so many things wrong with us. We are still not, we are not clean yet, but there is still sanctification going on in our life. Every day, God is teaching me something, and there are many things God is changing in me. And over the period of years, yes, the Lord has taught me many things. I can testify that He has set me free from anxiety in many areas. I still become anxious sometimes, and then I repent again and go to the Lord. And sometimes earlier I used to be full of fear, but then now the Lord has given me that assurance in my heart, and He tells me that He is with me, and I don't need to worry about anything. And one more thing I would like to share is that one of the areas that I am trying to overcome in my life is anger. I have been struggling with it for a very long time, and I ask the Lord often, I get angry, and then after some time I realize what I have said or what I have done, and the Lord is telling me that I should repent of that, and I'm asking God to help me in this area to overcome anger. I have not attained this yet, but I am depending upon the Holy Spirit to help me to overcome anger in my life. And I believe that Jesus has not given up on me, and he is my hope, and He's going to help me. Amen. Yes, praise the Lord. Praise the Lord, brother, sister. मैं यूहन्ना 8 से 10 तक में 8 का 1 से 10 तक पढ़ के जो ब्रदर ने बोला, तो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिखाया, वो मूसा ने व्यवस्था दिखाया, लेकिन उससे हमारे पाप दिखाते हैं। और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह से आया है, इसलिए अनुग्रह हमें जीवन देता है। तो मुझे ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। यूहन्ना 8 में जो वचन लिखा है, 1 से लेके 10 तक लिखा है, जो परमेश्वर से हमसे बातें कर रहा है, जो सामरी स्त्री थी जिसने पाप किया था, उसको भी परमेश्वर ने क्षमा दे दिया। और हम भी तो पापी है, और हमने भी तो पाप किया है, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है कि तुम आओ मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें जीवन दिया है और हमें पापों से मुक्त किया है, और हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से वो हमें निकालता है और अपने लहू से हमें शुद्ध करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना, हाथ करके बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ।
इस वचन से मैं आगे बढ़ूं, जो भी मेरे जीवन में जो भी घटी कमी है परमेश्वर मुझे दिखाए और मैं उस वचन से आगे बढ़ूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद। और किसी को कुछ शेयर करना है ब्रीफली? जैसे सिस्टर ने भी शेयरिंग किया है कि जॉन चैप्टर 1 योना 1:17 में व्यवस्था मूसा से आया है, लेकिन प्रभु के यीशु मसीह से उनका कृपा और सच्चाई आया है। तो मूसा से लोग गलती दिखाते थे, हाँ ये गलत है वो गलत है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, हमारा गलती देखते हैं और उसको हमको मदद भी करते हैं, हमारा ताकत भी देते हैं उन पाप से दूर होने के लिए। जैसे चिंता है, गुस्सा है, सब प्रभु आपको बचाने के लिए आया है, और बचाने के लिए आया कि हमारा पाप और दिखाते हैं, और सब पाप अंदर जो छिपा हुआ है वो पाप भी दिखाते हैं हमको, और उससे भी हम लोग को निकालते हैं। और दिन प्रतिदिन वो हमारा पाप तो बिल्कुल, हमारा दिल तो शुद्ध होते रहते हैं। We become pure and purer, better and better as we confess our sins, all these bad habits, हमारा चिंता, बुरी आदतें हैं, हमारा ये दुनिया की लालच जो होते हैं हमारे जीवन में, इसकी लालच, हम तो ज्यादा स्वर्गीय होता है, हम तो हमारा मन तो ज्यादा प्रभु की ओर देखते हैं, दूसरों को जल्दी क्षमा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले हम किसी को प्रार्थना नहीं करते, सबका निंदा ही कर देते, बस हमारा आदत है ऐसे। प्रभु हमको बहुत बदलावट हमारे जीवन में लाया है और लाएंगे, और भी लेके ले आएंगे। He will change us from glory to glory, He will make us like Jesus। इसलिए हम प्रभु के लिए धन्यवाद करना है। कभी हमारा ये आप कभी छोड़ना नहीं है, हिम्मत कभी छोड़ना नहीं है। We must always say, yes Lord, you came to save a person like me, the worst sinner, सबसे बुरी पर्सन, सबसे बैड पर्सन, मुझे सेव करने के लिए प्रभु ने आया। हमारा आत्मिक चीज चेंज करेंगे और बाकी का शारीरिक चीज भी हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग पहले पृथ्वी की चीज, कपड़ा, दो, ये वो, खाना पीना, उसके मतलब मेरा मन लगते थे प्रभु, लेकिन प्रभु हम स्वर्गीय चीज पे हमारा मन लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम लेकिन थोड़ी दिन के लिए हमको हम 1-2 दिन की मेहमान है, इस दिन हमको प्रभु के पास जाना है, हम प्रभु के लिए जिएंगे और दूसरों को भी बताएंगे आप प्रभु तैयार होना, मरने के बाद हम प्रभु से जीना है। प्रभु हमारा शाबाशी करना चाहिए कि हम प्रभु के लिए जिया है।